colonels, female colonels, I have seen, they convert their life to therapist, to mentor, and especially majority of them transform their life as a life coach. So I mean, why it is that? I mean, why are Indian Army becoming life coaches these days? We deal with all sorts of people in all various levels. But I will say I'm not a life coach, so I'm a little different. I deal more on emotions. मैं ना भावनात्मक पे ज़्यादा जोर देती हूँ. कोई बॉर्डर एरिया में है, अपनी फैमिली से महीनों दूर है, बच्चे बीमार हैं, आप बात नहीं कर सकते हो या आप इन टच में नहीं हो या कम्युनिकेशन टूट गया, तो व्हाट इज द पर्सन गोइंग थ्रू? या जब आप किसी सिचुएशन में हो तो आप अपनी पुरानी यादों को डिस्कस कर रहे हो, तो आपके क्या हो रहा है आपके अंदर? और मैम आपने बताया कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी नीड हीलिंग. सो मैम ये फिगर आउट करें कैसे? मतलब नाउ दिस इज अ टाइम वेयर आई शुड कंसल्ट अ साइकोथेरेपिस्ट, अ कोच, अ मेंटोर. सो मतलब ये जो चीज़ें हैं उसे हम लोग फिगर आउट करें कैसे कि नाउ आई एम इन डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन कभी भी आ जाती है. सो हम लोग ये कैसे पहचाने कि अब मैं डिप्रेशन कि यू डोंट हैव टू लिव विद गिल्ट एंड रिग्रेट, बिकॉज एवरीथिंग, द टू थिंग्स, देखो लाइफ में बहुत कुछ है जो होगा, इसमें आपका बस नहीं है. आप लोगों से मिलते हो, लाइक यू आर स्पीकिंग टू मी, यू डिड नॉट प्लान समबडी कॉल्ड पूजा गुप्ता, ऐसे अपने दिमाग में सोचा था वो आएगी, नहीं, इट हैपेंड. सो इट इज लाइक destined, that's you are destined to meet people in your life. They're not, you don't have a choice there. So hello viewers, today I am in conversation with Lt.Col. Pooja Gupta ma'am. She has served our country for over 20 years, and today I will ask her about her journey and how, and actually the interesting thing is her entire family, I guess, belongs to Indian Army, right? So we will delve into that as well. And she is working as a regressional therapist, helping thousands of individuals by helping them, by guiding them, by giving them a practical, insights, knowledge, and wisdom in regard of that how to deal with regression and past traumas, right? So first of all, thank you, Pooja ma'am, for taking out your 30 minutes for this podcast. It is going to be very valuable for the viewers who are watching us, today. So first of all, ma'am, tell me about your journey, that how you started your career as a colonel in army, right? Tell me. So Ronak, I come with an experience of over 30 years in Oh. diverse fields. Hmm. I've been a teacher, a mentor, an event manager, an army officer. I retired last year, and now being a healer. This all has contributed, my entire journey has contributed to my being a healer. From serving my nation to serving the mankind, from being a warrior to being a healer, from being a leader throughout life, and now being soft and empathetic to understand the emotions of other people. If I talk about my present occupation, I'm an internationally certified hypnotherapist with my specialty being past life regression. I'm certified from International Association of Counselors and Therapists, United States, from National Guild of Hypnotists, United States, from International Practitioners of Holistic Medicine, United Kingdom, from Alliance Trainer, the Michael Newton Institute, United States, from Soul Consciousness Lab, India. I also qualify in family constellations, Akashic records, numerology, astrology, palmistry, tarot, graphology, face profiling. So anything that intrigues about human behavior, I just learn to acquire more and more knowledge. So I conduct one-on-one sessions and group sessions for individuals and public and private agencies. Ma'am, I have prepared few set of questions that I will ask you in the podcast, but आपने मुझे पहले बताया नहीं कि you have knowledge of numerology, astrology. वो सब बताया होता तो आज मैं उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करता, बट खैर अब जब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे उसमें हम लोग shortly we will incorporate those questions as well. Because these skills these days, I don't practice these skills professionally except the hypnotherapy. These are like
takeaway things for my clients. Hmm. I give them as takeaway tips whenever they require it. So, ma'am, tell me that you started your journey as a colonel in Indian Army. So, how did this idea cross to your mind to give examination, right? And actually, how did you decide to get retirement from that, period of journey, and then you took opportunity of becoming a regressional therapist? So, actually, there are a lot of colonels, female colonels, I have seen they convert their life to therapist to mentor, and especially majority of them transform their life as a life coach. So I mean, why it is that, I mean, why I are our Indian army becoming life coaches in these days? Tell me. So, okay, it's because I think we see so many up and down of emotions, so much struggles in life. We understand people because we deal with all sorts of peoples in all various levels. But I will say I am not a life coach, so I'm a little different. I deal more on emotions. मैं ना भावनात्मक पे ज्यादा जोर देती हूँ. Like we say, emotional, mental and physical health. तो भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक. So जब मेरी जर्नी, it I cannot say it's all about army because it spreads over 35 to 40 years. मैंने इन सब चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया था जब मैं स्कूल में थी. Right. I started learning astrology and palmistry, I think, as old as when I was in 7th or 8th standard. Hmm. I used to read about regression when I was in school. I read Brian Lee's extensively at that time. But it happens that life is happening at various stages. In army, you have where it's a very humble and full of gratitude kind of a profession. You get so much to learn. It is so enriching. It is so uplifting in the army. At Hmm. the same time, you also have your ups and downs. आपके उतार चढ़ाव चल रहे हैं जिंदगी में. आप बहुत कुछ देख लो. कहाँ आपने सोचा होता है आर्मी इज लाइक द मैजिक ऑफ आर्मी. वेयर विल यू थिंक कि एक 22-23 साल की लड़की Hmm. अपनी पहली पोस्टिंग में एक इंसर्जेंसी बॉर्डर पे बैठी होगी नॉर्थ ईस्ट में, Right. या वो एक बड़ी सी एक्सरसाइज में अकेली महिला होगी जहां पे सारे के सारे पूरा कमांड थिएटर है. सो इट इज एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. So it makes you very strong. But as you learn to become strong, you also realize there's some suppression happening inside. Hmm. Because आप कुछ ना कुछ तो दबा रहे हो ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के. आप अपनी इमोशनल साइड जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं दबा रहे हो. And because I was already intrigued by human behavior, I loved observing people to understand and read them. I used to observe them in various situations. कोई बॉर्डर एरिया में है, अपनी फैमिली से महीनों दूर है, बच्चे बीमार हैं, आप बात नहीं कर सकते हो, या आप इन टच में नहीं हो, या कम्युनिकेशन टूट गया, तो व्हाट इज द पर्सन गोइंग थ्रू. या Right. जब आप किसी सिचुएशन में हो तो आप अपनी पुरानी यादों को डिस्कस कर रहे हो, तो आपके क्या हो रहा है आपके अंदर, हाउ डू फील. या आप नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल सिविल में हो, अपने नॉर्मल पीस एरिया में भी हो, तो भी फैमिली प्रॉब्लम्स, ओल्ड पेरेंट्स, या आपका अपना ऑफिस कितना आपको मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को इफेक्ट डालता है, वो सब मैंने ऑब्जर्व किया. एंड आई रियलाइज देयर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू रिकवर फ्रॉम दैट. दे वांट टू ब्लूम. दे हैव सो मच पोटेंशियल टू ऑलवेज स्माइल. राइट, इट इज एक्चुअली ट्रू. एंड कोई जानता नहीं होता है. मैम मैम आपने बहुत प्रैक्टिकल चीज अभी बता दी कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वहां होगी, ये यहाँ होगी. सो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट? और या जानते तो सब एंड है. दूर से देख के लगता है कि सफर बहुत ही खूबसूरत है. खूबसूरत है, कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत सफर है. हम्म, लेकिन आपको सिखाता भी बहुत है हर तरीके से जिंदगी. और मैम ये तो जानते भी सारे लोग हैं आई गेस कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, बट फिर भी हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्या होगा क्या होगा. सो व्हाट आर योर टिप्स इन रिगार्ड ऑफ हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग? और ये पॉसिबल है? मतलब लोगों को तो सीधा वन लाइन में एक एक आंसर चाहिए कि कैन आई ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग और नॉट. बट ये पॉसिबल है? मतलब ओवर थिंकिंग तो हम लोग, आई गेस इट इज अ ह्यूमन नेचर. हम लोग करते ही हैं ओवर थिंकिंग. So what do you think? Is it a myth, or it can be, confronted? No, overthinking is very much existing. And if I answer your question in one line, we should accept ourselves the way we are. Mm, We don't accept ourselves. right. We want to be like someone. We want to be like, we don't remember that we are unique. We are the only one. We have our own
life. We are unique, we are special. We forget that. We just try the rut of becoming like somebody else. और हम उससे कम क्यों हैं, मेरे पास उतना क्यों नहीं है. That is all okay, I understand. We should have aspirations in life, there is no wrong. But we should be in acceptance. अगर मैं overthinking वाले मोड में जा रही हूँ, तो I should be in acceptance to ask for help or talk to people. The most difficult step for anybody to heal is to accept that I need help. And I think it is very important for people to understand that asking for help is not weakness. It is the strongest thing you can ever do. It is very difficult to reach out and ask for help. And if you can do that, I find you are the bravest. राइट. और मैम आपने बताया कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी नीड हीलिंग. सो मैम ये फिगर आउट करें कैसे कि मतलब नाउ दिस इज अ टाइम वेयर आई शुड कंसल्ट अ साइकोथेरेपिस्ट, अ कोच, अ मेंटोर. सो मतलब ये जो चीजें हैं उसे हम लोग फिगर आउट करें कैसे कि नाउ आई एम इन डिप्रेशन. बिकॉज डिप्रेशन कभी भी आ जाती है. सो हम लोग ये कैसे पहचाने कि अब मैं देखो एंजाइटी से डिप्रेशन गुजर रहा हूँ. देखो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, राइट? हम्म. बट जब आप एक लूप में जाते हैं, जब आपको लगता है ना आप बार बार लो फील कर रहे हो, आंसू निकल रहे हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत हो रही है, अपने पे गुस्सा है, दूसरों पे गुस्सा है, मतलब अंदर कुछ तो है ना हम्म. जो इतना दब रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा. ठीक राइट. है, अंदर कुछ तो है. अब when you say, see, it's also a taboo in India about mental health. Going to a psychiatrist or a psychologist is still a taboo. People are still not okay to. बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. वेस्टर्न कंट्रीज में दे गो फॉर फिजिकल चेकअप्स, जैसे अपना ब्लड चेक कराते हैं ऐसे अपनी मेंटल हेल्थ भी चेक कराते हम्म. हैं. लेकिन इंडिया में अभी एक, सपोज कोई बोलेगा यार बहुत दिक्कत हो रही है, आई एम फीलिंग लो. अरे यार क्या बात कर रहे हो, जस्ट हैव अ ड्रिंक और यार छोड़ो, जा घूम के आ, खेल के आ, सब ठीक हो जाएगा. ये तो राइट. होता ही रहता है लाइफ में. सो यू टेक इट वेरी लाइटली. But as a parent, also for children, as colleagues, we have to identify, is the person really going in a loop? हम्म. It happened with me, Ronak. I know. I have been through a lot. I came to a condition where I was almost bedridden. हम्म. But even nobody could even make out what I was going through, because mental health is something which is not subjective. It is not visible on you. राइट. ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं पा रहे हो, आप खा नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होता है. सो लोगों को पहचान नहीं, समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. राइट. लोग समझ ही नहीं पाते. But और more than mental health, I particularly stress on emotions. हम्म. I feel when we say about mental health, it is also coming from some emotions. अगर आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में खुश नहीं हैं, if there's anything bothering you in any part of life, you must home down to the basic emotion कि मुझे emotion क्या feel हो रहा है. Is it हम्म. sadness? It is helplessness? What? Ultimately, mental health is also governed by emotions, हम्म. right? राइट. सो इमोशंस अपने आप को, और क्या वो इमोशन नहीं जा रहा है, हम्म. क्या मैं कुछ भी करके उसको नहीं हटा पा रहा हूँ या हटा पा रही हूँ, वो रह रहा है मेरे साथ. So that is a time that you must ask yourself कि it's high time I need to work on myself. और मैम आपने जो बताया अभी कि डिप्रेशन और नॉर्थ में ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग इसे नेगलेक्ट ही कर देता है लोग. राइट. कि ये तो एक छोटा सा चीज है, चलो एक लेट्स हैव अ कप ऑफ विस्की और हटाओ इसे. विस्की के साथ साथ मेरी एंजाइटी भी जाएगी. राइट. सो ऐसा Basically, सीन है यहाँ पे. anything that gives you happiness, हम्म. चाहे वो विस्की हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो कोई मीठी ड्रिंक हो, just what gives you a kick, right? And that is why antidepressants have become part of life for many people, because they give them happiness. But without realizing the side effects, the kind of side effects they leave on you, you can't even imagine. So, are you ready to live with side effects in your life? Or you really want to smile from within? कितनी भी दवाइयां खा लो, वो सुपरफिशियल ही रहेगा. इसका मैम एक शायद वो वाला इम्पैक्ट पड़ता है, उसको शायद हम लोग बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. कि हमें लगता है तो हमें लगता है हो जाएगा. बट वो हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमें लगता है तो हो ही जाता है. राइट. सो और मैम. प्लेसिबो इफेक्ट का असर भी तब तक ही रहेगा ना, तो वो प्लेसिबो वाली फीलिंग है, जैसे ही वो इमोशन दोबारा आएगा, इट विल ट्रिगर, या. इट विल अगेन ट्रिगर यू. You have राइट. not released it. राइट.
सो मैम व्हाट डू यू थिंक, आई मीन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वे टू डील विथ इट ताकि वो ट्रिगर ना हो, व्हाट डू यू थिंक? Because see, I since I am a hypnotherapist, so and I have seen a very beautiful way of healing in this modality. So what I do is like we go to our past, we travel past, and we drop our baggages. कि आ कहाँ से रहा है? Mostly, you will find it is not that present condition which is affecting us. It is something deep rooted, hidden in our past. Maybe early past, recent past, childhood, or maybe even more backward than that, maybe coming from previous lives. But आपको generally, and whenever such a condition arises, you feel triggered. Suddenly आप उस loop में आ जाते हो और वैसे ही behave करना शुरू कर दो. So mostly in 99% cases time, what I have noticed, it is not the present situation. It is just a result of something that is also triggering you in the same situation very badly, which needs to heal in you. सो मैम लेट सपोज एक एग्जांपल है कि कि हमारे व्यूअर्स में से एक व्यूअर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है एंड बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, ताकि उसका रिलेशनशिप टूट गया, लड़की छोड़ दी, एंड इट वाज अ ट्रू लव बिटवीन हिज और हर, राइट, फॉर मेनी मेनी इयर्स, लाइक 10 years और 15 years। लेकिन वो लड़का फिर भी उससे ओवरकम तो हो चुका है, मतलब या ही इज वर्किंग, ही इज अर्निंग, ही इज हैंडलिंग सब कुछ, वो मतलब कर रहा है, बट फिर भी उसे 6 मंथ में या फिर 2 मंथ्स में उसे मतलब वो एक रिग्रेट रहता है कि उप्स, अगर मैंने ये नहीं किया रहता तो आज वो मेरे साथ होती। सो और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। सो मतलब क्या ये नेचुरल है, ये रहेगा, या फिर ये कुछ है, मतलब इज इट अ ट्रॉमा, व्हाट डू यू थिंक? This is compulsive behavior, right? Somewhere you know you are again in that loop. You're blaming yourself for ब्लेम। something. You're feeling guilty. You're living with regret. That is exactly what I'm saying. कि you don't have to live with guilt and regret. Because everything, the few things, देखो लाइफ में बहुत कुछ है जो होगा जिसमें आपका बस नहीं है। आप लोगों से मिलते हो, लाइक यू आर स्पीकिंग टू मी, यू डिड नॉट प्लान समबडी कॉल्ड पूजा गुप्ता, ऐसे अपने दिमाग में सोचा था वो आएगी, नहीं, इट हैपेंड। So it is like destined. You are destined to meet people in your life. They're not. You don't have a choice there. So राइट। if he has met a girl whom he fell in love with, he was destined to meet that girl for some reason. Now her going. Okay, there must be some decisions that they are free wills from the girl's side or his side. तो उन्होंने चॉइस करी कि भाई मुझे किसी और के साथ जाना है या कुछ है। लेकिन since there are two people involved, the person, like आपने कहा लड़के को अब बार बार याद आ रही है, he has to understand कि ये सिचुएशन में मुझे क्या सीखना है। What is the lesson hidden? The moment he learns the lesson that he has been given, that situation will not be there. And the hurt, that is what I'm saying. You know, हम क्या सोचते हैं कि अभी सपोज आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है किसी के साथ, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे बच्चा और माता पिता है, चाहे दो अलग लोग हैं, उस कॉन्वर्सेशन में ना हम बहुत हर्ट भी होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी जो हम, क्योंकि उस वक्त हमारी भावनाएं बहुत जोर पे होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा, कुछ टूटता है अंदर, राइट? और जैसे जैसे हम उससे दूर होते हैं, हमें लगता है कि या तब मैं समझ नहीं पाया लेकिन अब मैं समझता हूँ, अब मुझे समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, या इट वॉज नॉट दैट, लेकिन दैट इज नॉट राइट। वो जब हम सोचते हैं ना कि तब मुझे समझ में आता है, वो एक्चुअली जो उस वक्त का इंसान है जो समझने को तैयार नहीं है, उसकी सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो जाता है। एंड उस तरीके से ही स्टोर होता है बिकॉज अगर आपको उस चीज को याद करके दर्द हो रहा है, चाहे वो थोड़ा सा ही है, तो मतलब दैट हैज नॉट बीन लर्न, वो आपके पास रह गया, यू हैव नॉट रिलीज इट। और फिर जब आप किसी और से मिलोगे, किसी और से रिलेशनशिप में आओगे, दैट अगेन विल गिव यू पेन। So you know it may also happen that you make a pattern which is very important to break. मैम आपने एक बहुत प्रैक्टिकल चीज अभी जस्ट कही कि लिसन, मतलब जब भी हम डिप्रेस्ड होते हैं तो वी शुड ट्राई टू लर्न अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लेसन फ्रॉम इट, कि हम लोग क्या सीख सकते हैं जो हम लोग आगे जाके उससे रिपीट ना करें, सो दैट वी विल नॉट गेट डिप्रेस्ड। सो लर्निंग इज हैज ऑलवेज बीन a magical thing to deal with anything, right? So ma'am, I have few set of questions I have prepared from a viewer's perspective, नहीं तो हम लोग अगर बात करें Hmm. तब तो 3 घंटे का सेशन हो जाएगा, right? Yeah. मेरा तो टॉपिक So है यार, I can go on and on. it is a vast topic. So Hmm. ma'am, what is hypnotherapy and past life regression according to you?
or is there any evidence that past life regression works? Tell Hmm. me, Okay. according to I your ask you, Ronak, what do you think what is hypnotherapy? Tell me. what do you think, or What is hypnotherapy? तुम बताओ. तुम्हें क्या लगता है कि hypnotherapy क्या है? मैम, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे लगता है हिप्नोथेरेपी में एक एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है हुज नेम इज सुहानी शाह, यू नो हर। Not her. तो उसी का डेफिनेशन मैंने देखा था कि वो भी हिप्नो थेरेपिस्ट है, वो माइंड रीड करती है लोगों का। सो आई Hmm. हैव सिमिलर थॉट्स। आई थिंक हिप्नो थेरेपी इज समथिंग कि अगर इफ इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू सिवियर पेन, तो हम लोग हिप्नोथेरेपी के प्रोसेस में जाके उसको उसके माइंड में समथिंग हम लोग उसे साइकोलॉजिकली हील कर करने का कुछ सॉल्यूशन फिगर आउट कर सकते हैं। सो दैट प्रोसेस में मे बी अ हिप्नोथेरेपी फिगरिंग आउट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू, आई मीन, जाएंगे उसके पास में, Hmm. फिर डिस्कस होगा ये वो। सो दैट इज So this is exactly the biggest myth that I will go into your mind and know what is happening there. माई। So this is the myth. That is why I asked you because I know everybody will say कि मैं लोगों से पूछती हूँ, हमेशा पूछती हूँ मैं क्वेश्चन जब भी वो मेरे पास आते हैं। तो कोई बोलेगा आप हमारे माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे, हम्म। या इट इज वशीकरण, काला जादू, पता नहीं क्या क्या निकल के आता है। काला लाइक जादू। ओके। ओ पीपल थिंक इट विल बी लाइक मैजिक, वन एक चुटकी बजाई और सब कुछ आपके वश में है, ठीक है। या वो पुरानी पिक्चर में दिखाते थे पेंडुलम हिलाया एंड इट्स लाइक, सो सी hypnotherapy is not anything like this. It is a very therapeutic procedure. It is like we use your heightened state of consciousness. It can say a altered state. You can say expanded consciousness in a manner that we use it to resolve what is sitting there. Any issues that you need to resolve in life, you need to search answers for. Because subconscious, जिसे हम क्या subconscious means, जिसे हम कहते हैं कि आपका अचेतन मन, हम्म। उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ स्टोर्ड है कि उसमें आपके पास सारे जवाब, लेकिन आप उसे कॉन्शियसली टैप नहीं, कॉन्शियसली आपको नहीं पता कि उसमें क्या है। सो हिप्नोथेरेपी इज लाइक, अगर मैं आज तुमसे बोलती हूँ कि रौनक तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम सोचोगे थोड़ा सा, अभी तुम कहोगे मैम शायद ना मेरे साथ ये 2 साल पहले ऐसा हुआ था, तो मे बी ये उसकी ड्रेसेस में ऐसा हो गया। लेकिन जब सबकॉन्शियस में जाते हैं ना, तो इट इज नॉट दैट यू हैव टू थिंक, इट टेक्स यू टू द प्लेस वेर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, एंड इट इज मोस्टली वेरी इनसिग्निफिकेंट स्मॉल एरिया जो आपको सोच भी नहीं होता है कि यहाँ से आ रहा होगा। एज स्मॉल एज कि स्कूल में 2 बच्चों में लड़ाई हुई हम्म। और उसको थप्पड़ मारा और बोला कि जिंदगी में कभी तेरे को ये हक नहीं है कि तू ऐसे बोल, इतनी छोटी सी बात भी, क्योंकि वो बच्चा तो बहुत छोटा है ना, राइट। उसके मन में वो कैसे घर करके बैठेगी हमें नहीं पता। वही बच्चा जब 20 साल का होगा उसे लगेगा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, समझता हूँ, लेकिन वो ट्रेड कहीं ना कहीं वो डर बैठ जाता है। एंड यू विल नोटिस दैट एज दे ग्रो इन लाइफ, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो दे विल नॉट स्पीक, उनका ओपिनियन कहीं ना कहीं चला जाता है, खत्म हो जाता है। सो मैम, दिस इज सो हिप्नोथेरेपी। So hypnotherapy is a very powerful technique. It addresses anything and everything that you are suffering from. मतलब हर एक चीज के बहुत सारे पहलू हैं. There is something called parts therapy in hypnotherapy. I'm very fond of this therapy somehow. हम्म। It is like we create a dialogue with your physical, emotional, intellectual, and spiritual side. We create a dialogue and see what is lacking, what is the need, क्या चाहिए तुमको, and then we integrate it. It is such a intense and powerful technique to heal you. कि आपको ना अपना सारा कुछ मालूम पड़ जाता है, साथ के साथ आपको मिल भी जाता है अपने अंदर से ही, आपको किसी बाहर वाले पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। जो यू मीन टू से सारे सॉल्यूशंस हमारे ब्रेन में ही रहते हैं, बट हम खोजते हैं बाहर हैं उसे, राइट? यस, ब्रेन में क्या आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर है। सो मैम, ये तो बहुत बड़ा मिथ आपने आज, ये जो एक इल्यूजन है कि माइंड को हैक करना साइकोलॉजिकली और घुसना पास्ट में, काला जादू एंड ऑल, सो यू हैव ब्रोकन द मिथ। और आज हमारे व्यूअर्स भी इस बात को समझ गए होंगे कि व्हाट इज हिप्नोथेरेपी। इट इज अ वेरी वास्ट लॉन्ग प्रोसेस। हमें डिटेल्ड सबकॉन्शियसली हम लोग फिर फ्लैशबैक में जाते हैं, बहुत ज्यादा एक वास्ट चीज है। सो मैम, व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव एनी एविडेंस, यू हैव हील्ड लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड ऑल, सो कैन यू शेयर अ स्टोरी कि मतलब एक ऐसा क्लाइंट आया
जो बहुत ज्यादा डिप्रेस था, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू हिप्नोथेरेपी, राइट? Almost every client is a story. I will say almost every because the kind of transformation they go through, the kind of way they bloom is so contenting. इतनी ज्यादा सुकून मिलता है ना मुझे जब वो मेरे पास रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं. मतलब आपको एविडेंस, साइंस हैज आल्सो गिवन इनफ एविडेंस. there's a हम्म। movie on this with the Newton Institute called Flip Side. उसमें राइट। काफी एविडेंसेस की बात ही करी है, दिखाए भी गए हैं. there's enough evidence now. हम्म। It's been proved कि आपका वो स्ट्रक्चर चेंज करता है. लेकिन the biggest evidence is when the people heal. When people heal, they smile and they tell you. And it is not the biggest, the beautiful thing about this is it is not temporary. मतलब हिप्नोथेरेपी भी ना अलग अलग तरीके की चीजें हैं. जैसे जब हम जैसे आई डोंट नो स्मॉल थिंग लाइक जैसे कुछ चीजें होती हैं जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आपके दिमाग में कुछ इम्प्लांट करना हुआ. वो टेम्परेरी हुआ कि ओवर 3 weeks दे हैव बीन इम्प्लांटेड एंड देन यू हैव टू नर्चर इट. राइट। और कुछ चीजें होती हैं जो परमानेंट होती हैं लाइक व्हेन यू क्लियर योर बैगेज फ्रॉम योर चाइल्डहुड, all past life, all recent past. It is lifelong. You benefit out of it lifelong. That thing is permanently dropped. Like there's a man who came to me for a session. Almost no conversation with his father. Right? He thought it is very normal. The fathers in India don't speak much, so it hota hi hai. But when we regressed him, there were certain small moments in his childhood which were जो उसके दिमाग में इतना घर करके बैठ गए थे कि वो अपने पिता के पास जा ही नहीं पाता था बात करने. उसके अंदर गुस्सा था, उसके अंदर बहुत कुछ था which because he was not able to understand from that point of view at the age of 4 and 5 years, which he never realized. He never thought कि it was coming from there at that age. When we regressed and we dropped the trauma, their relationship bloomed. They are like best of friends now. They talk. So, and like a girl, कोई एक छोटी सी बच्ची है, स्कूल में एग्जाम्स हैं, आप किसी को फेस करना ही नहीं चाहते हो, बोल तो पढ़ना ही नहीं है. आई एम मतलब यहाँ तक कि खासतौर पे टीनेजर्स, आई गेट लॉट ऑफ टीनेजर्स who think that they have no interest in life. Surprisingly, they say they have no interest in life. And then after just one session, they are doing so well. मतलब कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट 5 में आ जाए और उससे पहले वो बोल रहा है कि मुझे जीना ही नहीं है. जो इंसान किसी को फेस करना नहीं चाहता, वो 2000 लोगों के बीच में खड़ा होके बोल सकता है आराम से. तो दिस इज द इम्पैक्ट बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल तो है, राइट। लेकिन वो पोटेंशियल कहाँ गया ये आप नहीं समझ पा रहे. मतलब हिप्नोथेरेपी इज अ कॉमन सब्जेक्ट, बट ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और मैक्सिमम क्लाइंट्स जो आपके पास आए हैं, दे हैव बीन हील्ड विद दिस टेक्निक, राइट? ओह यस, एंड इट इज सो पीसफुल टू सी देम हीलिंग. रोते आते हैं, हंसते हुए मीन्स जाते रिलेशनशिप, जैसे आपने रिलेशनशिप की बात करी, बहुत सारे लोग आते हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत ट्रॉमा है, नहीं भूल पा रहे हैं उसको. But when they go through that journey and when they drop that, oh, they are so ready for a new partner. They are so ready to enjoy life. They are so ready to be themselves and love themselves. सो मैम, डू यू बिलीव कि बुक रीड करना इज अ क्रूशियल थिंग इन लाइफ? बिकॉज जहां तक मैंने आपसे सीखा है और आपको देखा है कि आप बहुत बहुत शुरू से ही, मतलब 10th क्लास, आई मीन कॉलेज, लाइफ, स्कूल लाइफ से ही आप इन सारे सब्जेक्ट्स पे स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, फिर आप पढ़ रहे हो, Hmm. नॉलेज को अक्वायर कर रहे हो. सो डू यू बिलीव दैट रीडिंग इज रियली हैज बीन बून फॉर यू? आई मीन ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया आपके लिए, Oh आपने बुक्स yes. पढ़? See, knowledge never goes waste in life. And reading is that in any way something, it is giving you some knowledge. आप कुछ भी पढ़ो, ना कुछ भी, आप उससे कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है. तो पहले तो पढ़ने की हैबिट ही बहुत अच्छी है. उसके बाद अगर आप चीजें पढ़ रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप उसमें से कुछ ना कुछ तो पाओगे. So now if I'm interested in human behavior and I have learned about astrology, and now I'm learning about hypnotherapy, and then I learn about regression, and then I see face profiling, graphology, you will be surprised. हर चीज कहीं ना कहीं आप मिला सकते हो. मतलब आप अल्टीमेटली आए तो सेम ही इम्प्रिंट पे हो ना. जब एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि आपकी जिंदगी में ये लिखा हुआ है, तो व्हाट डज दैट मीन? लेकिन साथ में हम ये भी बोलते हैं कि उपाय है. राइट। तो इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी. सो दैट मीन्स आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ को. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो होना ही होना निश्चित है.
हम्म, आपकी लाइफ में, दैट इज द सोल इम्प्रिंट दैट यू हैव कम विद। उसको नहीं कर सकते कुछ, मत चिढ़ो उस पर, डोंट टेक टेंशन ऑन दैट, इट इज वर्थलेस, दैट विल हैपन। बट जो आपके हाथ में है, जिसका डिसीजन आपके हाथ में है, हम्म, उस पर ध्यान दो। दैट इज व्हाट इज शेपिंग योर लाइफ, नॉट एनीथिंग। बिकॉज जो होना है, जिसके आप पे कोई बस नहीं है आपका, वो आपको जिंदगी में आएगा ही आएगा और सिखाने के लिए आएगा। इट इज मेंट टू हेल्प यू ग्रो। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मैम, और आजकल तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल, इट इज अ साइंस आई गेस, नंबर्स एंड लाइंस, इट इज साइंस, एंड इससे बहुत लोगों का माइंडसेट लाइफ भी बदल चुका है, राइट? सो इट इज रियली अ प्रैक्टिकल सेशन विथ यू मैम, और So for 30 me, minutes. na Ronak, like when you say, I just add on, when you say astrology and all, the reason I delved into hypnotherapy and past life regression, despite being into astrology, numerology, and palmistry, when I was doing astrology, I realized आप लोगों को उपाय देते हो पर वो करते नहीं, है ना? एंड आपकी ना लाइफ में ज्यादा इंप्रूवमेंट होता नहीं, आप जान तो लेते हो कि मुझे क्या करना है या क्या चाहिए, बट ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, वो ज्यादा नहीं है। तो व्हाट आई वांटेड वाज कि ऐसा कैसे हो कि रिजल्ट अपने आप, वो लोगों को मेहनत ना करनी। तो इन दिस थेरेपी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग योरसेल्फ, आपको हाथ की हाथ उधर की उधर ही रिजल्ट है। यू आर गेटिंग इनटू अ सेमी ट्रांस स्टेट, you are dropping your trauma and you're healing automatically on your subconscious level। उसमें हीलिंग इतनी ऑटोमेटिक होती है और वो थोड़ी चलती रहती है, मतलब आप अपने आप से ही हील होना शुरू हो जाते हो। हम्म। क्योंकि हम लोग खुद के बारे में जानने लगते हैं। सो जब हम लोग खुद के पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, देन हम लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, सो इट बिकम्स इजियर टू हील, राइट? पूजा मैम, यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी क्रूशियल टॉपिक्स विच आर वेरी वास्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आपने हिप्नोथेरेपी भी इस वे में एक्सप्लेन किया कि कोई भी समझ जाएगा, इवन अ 7 years old kid। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, आई मीन, एक आइडिया मेरे माइंड में बहुत देर से ट्राइंग टू क्रॉस, विच इज, आपने बहुत सारा स्टडी किया, गैस्ट्रो मतलब बहुत सारे फील्ड के बारे में नॉलेज हुआ, बट व्हाई डिड यू चूज अ रिग्रेशनल थेरेपिस्ट? आपने क्यों क्यों सोचा कि मैं एक रिग्रेशनल हीलर बनूंगी, या फिर ये आइडिया क्यों आया? आई मीन, व्हाट दैट किक्ड यू, राइट? बिकॉज वॉट एवर अदर मोडालिटीज वी टॉक अबाउट, वो आपके बारे में बताते हैं, यू कम टू नो अ लॉट अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, टैरो कार्ड विल टेक आउट कार्ड्स, न्यूमरोलॉजिस्ट विल टेल यू फ्रॉम नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू प्लैनेट्स, राइट? तुम्हें अपने बारे में काफी कुछ पता चलेगा, लेकिन उससे क्या, मालूम तो चल गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? So ultimately, you're again struggling to improve your life. Even after knowing that, you're still struggling to improve your life. So when I was in that mode, where I was also struggling at some point of time, and I was astrology, I was doing astrology, I knew numerology, I realized, there's something more to it. I delved into yoga and meditation, which was very good. And in that thing, I happened to go to my mom's womb automatically without any help. Nobody involved with me, nobody directing me somewhere. And I could hear a conversation between my parents 40 years back. Can you beat it? So, the one thing was, and I confronted my mother, something happened, and she acknowledged, yes, and she was shocked. So that gave me one thing was very clear, that you can travel back in past, because I was not under any influence. So I was very clear on that. Now I got to know something about myself, but then what? अभी तो ये भी मालूम पड़ गया, अब क्या? अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसू अभी भी बह रहे हैं, दुख अभी भी हो रहा है। So राइट। what next? So this is when I started looking for things which can also heal you then and there, which can drop the trauma, drop the hurt, which can heal you in a manner that you just roam. मैं भी यार, मतलब बहुत कितने फ्लाइट एंड डिप्रेसिव मेडिसिन जब आप खाते हो, तो यू गो इन द फ्लाइट मोड, एस्केप मोड में चले जाते हो। राइट। And somebody like me who was a fight mode person, you are changing my build, you are changing my trait. What will happen? It will be a disaster, right? So when I realized this and I started doing regression, I realized it drops your trauma completely. You know it, but you smile over it. अब वो तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा है। देखो, जो चीज हुई है उसे रेज नहीं कर सकते, इट विल राइट। रिमेन, बट इट इज नो मोर ट्रबलिंग यू, इट इज नो मोर बॉदरिंग you, it is no more giving you any pain. Rather, you are learning out of it so beautifully, that is why I call myself smiling soul. Na?
कि you are only giving smiles. So this is the only reason behind Pooja Gupta ma'am choosing regressional healer, right? So मैम मैं मुझे एक चीज आप बताओ कि you use sunflower in your sessions. So what is Hmm. the, I mean, इसके पीछे का क्या secret है? What is the secret which Hmm. is lying behind it, और sunflower flower क्या represent करता है? So till in very simple words to the viewers कि flowers क्यों use होते हैं? Because मैंने बहुत सारे थेरेपिस्ट को देखा है, कोई कोई लिली फ्लावर करते हैं यूज. So why? I mean, what it basically represent, right? See, flowers are definitely bright. They add colors to your life in many ways. They are connected to nature, so you automatically, it is very therapeutic. Hmm. Flowers are also therapeutic in nature. But why sunflower in specific I use? See, sunflower is one flower that faces the light automatically. Hmm. It refuses to be in darkness, Right. right? So it is something that is standing straight, tall, and saying, I am looking at you. Do you know the sunflower changes the direction throughout the day as the sun moves? Right. So it is always looking towards the light. So when you are looking at the light, you cannot be in darkness. Hmm. So Right. when I give sunflowers, I this is something that I have taken out also. It's like when you go further more into this modality and further more advanced stages, you also have sessions in the soul world. So Hmm. you have a lot of insights, a lot of messages. So sunflowers come from there too for me. We'll not delve into it. It's a very vast topic. राइट 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 राइट. और मैम मैंने मुझे जब पता चला कि आप सनफ्लावर यूज करते हो, तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था चेस्टर एल्टॉन के साथ. ही इज वर्ल्ड्स Okay. नंबर वन लीडरशिप स्पीकर. तो उनका एक Okay. एक टेक्निक अप्रोच है कि वो कैरोट लेके चलते हैं अपने सेमिनार में. कैरेट प्रिंसिपल है उनका. वो गाजर लेके Okay. चलते हैं, तो उनका एक Hmm. अलग ही फंडा है. तो वैसे ही आपका Hmm. सनफ्लावर है, तो हर हर आदमी का कुछ ना कुछ एक रहता है कि भाई मैं इसको एक मूल चीज बना के चलूंगा. इट इज अ सिग्निफिकेंट थिंग. और आपने सही कहा कि इफ वी विल लुक एट लाइफ, then life will look at us, but if we look at back of the life, then back of the life will look at us. So it is a very fundamental thing. Ma'am, एक last question I would like to ask, because we are approaching the end of podcast, right? That is, how does the inner child affect adult life, and what are the examples of unhealed childhood wounds showing up in behavior and relationship? I mean, child, inner child का क्या एक होता है? I mean, क्या इसका इम्पैक्ट होता है हमारे एडल्ट लाइफ पे? अगर अगर हमने कोई चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें हमारे हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया व्हेन वी वर किड्स, तो will it influence it in our adult life? So what do you think about this? I mean, childhood trauma. Its effect is immense. मैं बोलूँगी मतलब immense, बहुत ज्यादा इफेक्ट है उसका. Your inner child play a major role. You can nurture your own child. It is like it can be both nurturing and damaging. तो जब एक बच्चा अब्यूज के साथ बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको इतनी सारी चीजें एक नेग्लेक्ट के साथ बड़ा होता है. वो सारी जिंदगी अटेंशन के लिए भाग रहा है. ठीक है, एक बच्चा प्रेस से बड़ा हो रहा है, प्यार से बड़ा हो रहा है. बहुत फर्क है. एंड लाइक छोटी छोटी चीजें, Hmm. लाइक मैं ये नहीं बोलती कोई पेरेंट गलत है. नेवर से एनी पेरेंट इज रॉन्ग, बिकॉज Right. द चाइल्ड चूजेस द पेरेंट नेवर चूजेस द चाइल्ड, चाइल्ड चूजेस द पेरेंट. सो जब आप एक छोटी सी चीज बोलते हो कि यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट इन माई लाइफ, बच्चे को गुस्से में, राइट, या आपने कुछ और बोला उसको कुछ, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ कि एक बच्चा खेल रहा है अपने घर में, और उसकी एक दोस्त है जो कि उसे खिलौने उठा के ले जाती है, राइट. अब वो बच्चा 3 साल का है, सिर्फ 3 या 4 साल का बच्चा है. अब जब वो अपने दोस्त के घर जाता है, तो वो देखता है कि ये तो मेरे खिलौने हैं, तो वो अपने खिलौने मांगता है या लेता है. नाउ दैट मदर ऑफ दैट अदर चाइल्ड इज सो डैमेजिंग ऑन दैट अदर चाइल्ड कि वो उसको बोलती है तुम चोर हो, तुम मेरे बच्चे के खिलौने ले जा रहे हो, जो कि उसके अपने खिलौने हैं. लेकिन क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट ट्रीटिंग द चाइल्ड वेल, और वो उसको बोल रहा है कि आप मेरे लेके जा रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, वो इतना ट्रॉमेटिक होता है उस बच्चे के लिए कि जब वो बच्चा 40-45 साल का भी हो गया, उसे किसी से कोई चीज एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है. कोई उसे प्यार से भी कोई चीज दे तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे वापस करनी, Hmm. आई हैव टू रिटर्न इट, बिकॉज आई विल नॉट टेक फ्रॉम समबडी, इट इज नॉट माइन, समबडी विल ब्लेम मी टुमारो कि मैंने किसी और की चीज ले ली. कोई मुझे चोर ना बोल दे, कोई मुझे ये ना बोल दे कि मैंने किसी और का सामान लिया. तो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है
कि ये तो आप अपने रिलेशनशिप जो बहुत करीबी रिश्ते हैं, जो आपको बहुत प्यार से चीज दे रहे हैं, उनमें भी वो दिखाते हो और उनको हर्ट करते हो, बिकॉज दैट्स अ कंपल्सिव बिहेवियर नाउ कि यू हैव टू रिटर्न थिंग्स. हम्म. You are not understanding the emotion behind the gift. You are not understanding the other person's love. You're only wanting to just return. So छोटी सी चीज, लेकिन वो आपका रिलेशनशिप भी इफेक्ट कर रही है, जो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि वहां कहाँ से रहा है. कितनी राइट. छोटी सी बात है. छोटी सी. राइट. But it plays a massive role. सो इट प्लेज वेरी मैसिव रोल. बच्चों के स्कूल में बुलिंग होती है. हम्म. बुलिंग होती है, वो नॉर्मल बुलिंग है, लेकिन दे बिकम सो क्वाइट. दे आर नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड. वो जाना ही नहीं चाहते बाहर. स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि यार ये मेरा बच्चा ना बहुत रिजर्व है, क्वाइट है. नो, पहले जानने की कोशिश करो कि बच्चा हमेशा रिजर्व और क्वाइट है, कि उसका वो बेसिक ट्रेट था क्या हमेशा से, क्या जब से पैदा हुआ है तब से क्वाइट है, कि हो गया. अगर हो गया तो गड़बड़ है. So that's how inner childhood shapes the mindset of individual, right? So मैम ये सब बहुत बड़ा बहुत टॉपिक, ज्यादा इफेक्ट है. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वास्ट है. बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि ये बहुत सारे तरीकों से हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है, राइट? एंड इट इज अ नैन. नहीं, एक एग्जाम्पल है कि एक लड़की हॉस्टल में पढ़ती है. उसको लगता है कि माई मदर डज नॉट लव मी. ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया. एंड जब हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम समझते हैं कि उनकी मजबूरियां थी, लेकिन हम नहीं समझते हैं. एंड वो लोनलीनेस जिंदगी भर हमारे साथ चलती है, दैट वी स्टार्ट फीलिंग लोनली. वी हैव सो मेनी पीपल अराउंड बट वी स्टिल फीलिंग लोनली. व्हाई आर यू फीलिंग लोनली? आपको अच्छे नहीं लगते लोग, क्योंकि आपको डर लगता है कि ये मुझे भेज देंगे, दे विल नॉट चूज मी. बिकॉज वो एक सिचुएशन बैठी हुई है आपके दिमाग में. और वही सिचुएशन विल ट्रिगर लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन अस, राइट? एवरी टाइम. एवरी टाइम इट प्लेज. और इसी से एंड दैट इमोशन गिव राइज टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी. एंड हम लोगों को ये लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं सेल्फ आस्किंग को, क्वेश्चन दैट एम आई बैड और शुड आई सुसाइड. सो इट इज अ वेरी एंड दैट वास्ट. इज द मोस्ट डैमेजिंग. जब हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं. मैं एक पॉइंट दूंगी अपने व्यूअर्स के लिए भी. हम सबसे बोलते हैं हमें जज मत करो. डोंट जज मी. डोंट जज अदर्स. बट डू यू जज योर सेल्फ? इफ यू कैन स्टॉप जजिंग योर सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हम तो खुद को ही जज करते हैं सबसे ज्यादा. तभी तो हम बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया. कैन यू स्टॉप जजिंग आवर सेल्फ? इफ यू कैन डू दैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दुनिया जो कर रही है उसको छोड़ो, खुद को तो जज करना बंद करो. राइट. So viewers, Pooja ma'am asked you a question that do you judge yourself? So comment in the section. आपके लिए comment section पूरा खुला हुआ है, बाहर लाल ले आओ वहाँ पे, and tell in one word that और अगर तुम अपने आप को जज करते हो देन उसको थोड़ा कट ऑफ करो, बिकॉज जजिंग इज नॉट अ गुड थिंग. ये हमें एक ये मैम हमें एक डायरेक्ट एक सॉल्यूशन दे देता है कि यस और नो, वन वर्ड आंसर, जबकि ये You है should बहुत. live with smiles, not regrets. हम्म. Live with smiles. Why to live with regrets? Life is beautiful. So Pooja ma'am, what is your last message you would like to share to the viewers that that ये वन थिंग है, इस पे ध्यान दो और डिप्रेशन पे तुम ऑटोमेटिकली कम ध्यान देने लग जाओगे. सो आई मीन व्हाट इज द लास्ट थिंग यू वुड लाइक टू शेयर टू द ऑडियंस, राइट? Okay. So even if you're feeling low, even if life is looking heavy, try to force a smile on yourself. If you can even force a smile on yourself, you will see many things settling down. It is a curve that sets many things straight. It is said like that, right? So राइट. if you can force yourself, take a pause. When you smile, you take a pause. It is scientifically proven, if you can distract yourself for even 10 seconds, that situation is resolved. बहुत प्रैक्टिकल चीज है, और ये मैंने भी मैम ये मैंने भी देखी है, ये कि 10 सेकेंड पॉज, या फिर 10 सेकेंड खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, या फिर 10 सेकेंड वेट कर, एंड ये पूरा गेम अरे पलट. आप एक कमरे में हो, just start counting the light switches. Start seeing what all is placed in that room. You will get distracted. 10 seconds is enough. गुस्सा कितना भी आ रहा हो नीचे आ जाएगा. कितनी भी एंजाइटी हो काबू में आ जाएगी. राइट. और सलमान खान का कहना है कि जब भी गुस्सा आए तो जमीन पे सो जाओ. 10 सेकेंड, एवरीथिंग विल बी फाइन. सो लेकिन जमीन पे सोने में 10 सेकंड लगेंगे. That is good.
दैट इज ट्रू। और सलमान खान ये मतलब मजाक में नहीं बोले थे, वो मतलब एक इंटरव्यू में ही बोले थे कि जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं 10 सेकंड तक जमीन पे लेट जाता हूँ, सब चला जाता है। Okay, I'll tell you a reason for that also. I was not aware about Salman's this thing. हम्म। But पुराने जमाने में ना घर के दरवाजे बहुत छोटे होते थे। हम्म। आजकल बड़े बड़े दरवाजे हो गए। अगर आप पुराने जमाना देखोगे तो घर के दरवाजे बहुत छोटे छोटे होते। हम्म। इट इज सेड, जब आप अपना सर झुकाते हो, व्हेन यू बेंड योर हेड, सो आपका गुस्सा जाएगा बिकॉज आप झुक रहे हो। हमारी बॉडी भी बहुत रोल प्ले करती है ऑटोमेटिकली हमारे इमोशन में। जब आप सर झुकाते हो, तो जब सर झुका के घुसोगे ना, तो बाहर का जो गुस्सा लेकर आओगे वो अपने आप कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, राइट। और मैम सलमान ने ये बिग बॉस में कहा था, सलमान सर ने, कि मतलब उनको बहुत गुस्सा आता है ना, तो जब भी हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो जाते हैं और गलत गलत वर्ड बोलते हैं जोर जोर से, तो बोलते हैं तुम सो जाओ, तुम एक बार लेटो एंड देन यू हैव टू ट्राई कि अब तुम बोल के दिखाओ मुझे जोर से। तो ज्यादा प्रेशर आता है तो खुद शांत हो जाता है तो। इट इज ट्रू। ट्रू। एंड दैट इज द पॉडकास्ट मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत लंबा हो गया हमारा सेशन, बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। So, and it is full of insightful things. It is very practical stuff you have shared according to your experience. And you are a certified coach from Australia, America. So it is a wonderful thing to get your kind of, leaders, trainers. आई एम नॉट कोच। You are a healer. आई एम नॉट लाइफ कोच। I'm a hypnotherapist. Ma'am, I'm an advanced past life regression therapist who yeah. deals. I call myself emotional expert. Hmm. I deal in emotions. I'm working out on a program called Rhythm of Emotions. I'm first time disclosing on your podcast. I've never discussed about it with anybody. It's called Rhythm of Emotions. The Hmm. messages from my soul guides. मैम मैंने देखा है कि आजकल कोच का नाम इतना बदनाम क्यों है? टेल मी समथिंग अबाउट इट। मतलब लोग, पीपल डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज अ कोच। और मैंने ये देखा है बिकॉज शायद कोच को बहुत ट्रोल किया जाता है, बिकॉज कोच पे सारे ब्लेम्स आ जाते हैं। अगर उनका क्लाइंट या फिर उनके स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो एवरीथिंग डिपेंड्स। इवन माइकल Because जॉर्डन का भी कोच पे सब ब्लेम ब्लेम किया था। सो व्हाट डू यू थिंक? because coach has become a very generalized term. जनरलाइज्ड टर्म, राइट। मतलब हर चीज के लिए आप कोच बोलते हो, हर चीज के लिए। हम्म। कोई भी चीज हो, आप उसको कोच बोलते हो। एक केवल एजुकेशन फील्ड है जिसमें टीचर है, उसके अलावा आप कोच हो। थोड़ा सा ऊपर उठे तो मेंटोर हो। हम्म। ठीक है। बट एवरीथिंग, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो लीडरशिप है, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स है, चाहे वो लाइफ है, हर थेरेपी है, हर किसी चीज में हम बोलते हैं हम कोच। हम्म। बट मैं बोलती हूँ कि आर वी रियली कॉम्पिटेंट इनफ टू कोच एनीबडी? हम्म। They have come. You can tell them, you can give them things to work on themselves. But you cannot change them as to what you want them, and you should not do that. राइट। They should do work on themselves. और मैम पर कोच मेरा अपना नजरिया थोड़ा सा अलग है इस मामले में। राइट राइट। और मैम कोच पे ना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो सब कुछ ही बदल देगा, मतलब ही कैन डू एवरीथिंग। और आपने एक Yes. स्पेसिफिक टर्म की, आई एम अ रिग्रेशनल, तो मतलब इट इज योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो आई आई हैव नथिंग टू डू विथ योर लेग्स, aching. So all I have to do is No, to. no, of course. You have everything to do with your legs shaking. Believe me. Your emotions go and sit in various parts of your body. Oh. If your knees are aching, that means you're full of pride. If your shoulders are aching, means you're taking a lot of stress. Hmm. So the emotions go and sit in different parts of the body. एंड वेन वी हील, सडनली होता है लोगों को कि एकदम से पेन उठता है उस जगह पर, Hmm. और वो निकल जाता है, फिर बोलते था ही नहीं, है ही नहीं। अमेजिंग मैम, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। और अभी मुझे फिर से एक नई चीज पता चली कि लेग्स एकिंग, हेड एकिंग, शोल्डर एकिंग, स्टमक एकिंग, इसका भी बहुत ज्यादा कनेक्शन है हमारे ब्रेन से और पेन से, डिप्रेशन से। सो वी विल डू अनदर पॉडकास्ट। इमोशंस ही है, इमोशंस ही है वो भी। इमोशंस। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, सी, इफ योर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इज aching, and if you can understand the emotion behind it and work on it, you will see it as gone. सरप्राइजिंगली जिनको लोअर बैक एक होता है, बहुत ज्यादा लोअर बैक, तो टेल बोन वाला, दे में फील कि मेरा पोस्टर गलत है, ये है, दे विल हैव फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। वो एड्रेस कर दो, चला जाएगा। Right. So we will do another session for all these stuff, because it is a very vast subject. You are a hypnotherapist and it is a very vast thing
30 मिनट्स में हो ही नहीं सकता, और हमारे व्यूअर्स को नहीं हो सकता। चाहिए एकदम फुल फ्लेज, एकदम मतलब एकदम सब कुछ बना बनाया, उसको 1 to 1 आंसर। छोटा छोटा पार्ट लो, पता है ऐसे लो, एक इनर चाइल्ड पे हो गया, एक पास्ट लाइफ पे हो गया, एक पार्ट्स पे हो गया, ऐसे कर पाओगे क्योंकि इतना कुछ है ना इसके अंदर। राइट। सो इट इज अ पॉडकास्ट मैम, थैंक यू सो मच। और मैंने ये लाइन आई गेस 3 बार बोल दिया आपसे, बट अब जब ये खत्म होता है फिर एक नया टॉपिक राइज होती है, राइट? सो इट इज वेरी वास्ट थिंग। सो अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड एंड ऑल आर वेरी प्रैक्टिकल, एंड व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड इट इज अ लास्ट टाइम ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड हम लोग फिर से मिलेंगे ऑन अगेन द पॉडकास्ट, और हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट राइटिंग अ बुक? आई मीन, कभी भी आपने सोचा है कि आई शुड राइट अ बुक? I'm very blessed that all my clients now they really help me a lot. So my clients have been after my life to write a book. I've started writing small snippets about my sessions on LinkedIn. Very small snippet. That's not the whole session. It's just a very small part of the session. But that way, I'm very blessed, Ronak, that I think it's my clients who have made me go on social media anywhere, who push me to do anything where I am visible. So yes, I do think of writing a book now because the play of emotions in your life is tremendous, and how emotions can change your entire life. हम्म। I I have seen that. और मैम ये बहुत So it will ज्यादा, be definitely on the same topic. हम्म, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम, बिकॉज हम लोग अगर आप जब भी आप अपनी एक बुक लिखोगे, देन क्या होता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत आसानी से जाएंगे, खरीदेंगे और एक बुक में सब कुछ देख लेंगे। बट उनको चाहिए एक पॉडकास्ट में सब कुछ मिलना। सो इट इज पॉडकास्ट इज नॉट अ 200 पेजेस ऑफ, पॉडकास्ट इज अ ड्यूरेबिलिटी थिंग। सो इट इज ऑफ कोर्स माय लास्ट टाइम। 5 बार तो हो ही गया है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग ऑन द शो, और वी विल डू इट अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Ronak. Thank you.